नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी। T20 फॉर्मेट वाला होगा मैच। मुंबई में आईओसी सम्मेलन में क्रिकेट समेत 5 गेम्स को मंजूरी के पक्ष में पड़े वोट। नीता अंबानी ने बताया गर्व की बात। As an IOC member, a proud Indian and an ardent cricket fan, I'm delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport in the LA Summer Olympics 2028. I thank and congratulate the IOC and the LA Organizing Committee for their support to this landmark decision. हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा में इजराइल का एक्शन जारी। ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी। बाइडेन बोले गाजा पर पूरा कब्जा होगी गलती। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सीमित दायरे में बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। मेटल पीएससी ऑटो शेयरों में खरीदारी। अंतरिम बजट में भी बड़े ऐलान कर सकती है सरकार। राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तय हो सकती है रूपरेखा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। मर्जर के बाद पहले नतीजे में एचडीएफसी बैंक के मिले जुले आंकड़े। 16,000 करोड़ रुपए के साथ प्रॉफिट अनुमान से ज्यादा, लेकिन एनआईआई अनुमान से थोड़ा कम। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी नहीं होगी टर्मिनेट। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका को किया खारिज। मेडिकल कंडीशन सामान्य होने का दिया हवाला। एम्स को सही वक्त पर डिलीवरी कराने का निर्देश। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट की ओलंपिक में फिर से वापसी होगी। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने T20 के फॉर्मेट में क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल करने के पक्ष में वोटिंग कर दी। मुंबई में आईओसी सेशन में वोटिंग के बाद घोषणा हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा कि लॉस एंजलिस 2028 में होने वाले ओलंपिक में 5 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें क्रिकेट के अलावा फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह दी गई है। आपको बता दें कि 1900 के बाद पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। At the conclusion of the consideration, both the Olympic program and the IOC Executive Board fully supported the following recommendation. Based on the Olympic Program Commission recommendations, the IOC Executive Board proposes that the IOC session includes LA28's selected package of 5 additional sports, namely baseball, softball, cricket, flag football, lacrosse and squash, to the sports program of the Olympic Games Los Angeles 2028. This recommendation reflects the understanding the WBSC and ICC will provide the best players for the Olympic competition. This will be monitored closely. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इस फैसले पर आईओसी की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने खुशी जताई है। नीता अंबानी से बात की हमारी सहयोगी शिबानी खरत ने। Historic moment for India as cricket is finally a part of the Olympics. Your initial reactions, first comments. I think I'm so delighted. It's celebrations, I think, and this means a lot, not only for the 1.4 billion Indians, but I think everybody in South Asia. I think Olympics will now have a deeper engagement with all these countries in South Asia, like India, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. So very happy day. And it couldn't have come better. I mean, we are hosting the 141st Olympic session in Mumbai after 40 years. World Cup is being played in India, and this historic decision and voting went for it in India. So everything has come together. Yeah. And I think
only good things now. And also LA 2028 team, when they were presenting, they also spoke about the popularity of the sport of cricket worldwide with 2.5 billion followers of cricket worldwide. Also their intention to increase and make the sport popular in their own country. You have been involved in cricket for such a long time. Tell us, what will it do to the sport of cricket? I think I was there personally when we won the Major Cricket League in Dallas. And, not only the Indian diaspora, the stadium was full. And it was also having locals from Dallas to view this game and watch this game. It's a slightly complicated game to follow, unlike football. But I think there are lovers of cricket like me who will enjoy this around the world. I think we are going to have lots and lots of new fans of cricket now that cricket has become an Olympic sport. Also, what were the kind of conversations that you've had with IOC to make this happen, also with the LA 2028 team as well? So, this has been going on for the last 4 years. We've had so many discussions and deliberations about having cricket as an Olympic sport, and finally the historic decision had to be made today in Mumbai, so I'm just very happy. Yeah, and in general, Reliance has worked extensively with different kinds of sports apart from cricket. And during the inauguration of the 141st IOC session, which happened on Saturday, Prime Minister Narendra Modi also expressed his intention to host the Youth Olympics as well as the 2036 Olympics. What is the kind of infrastructure? Sports is becoming popular in country, but what is the kind of infrastructure, or how will Reliance work with the government to make a successful, play at Youth Olympics and the 2036 Olympics? I think not only Reliance, I think many corporates are going to kind of help in this endeavor. If we win the bid for 2030 Youth Olympics or 2036 Summer Olympics, I think it's a coming together of everyone for this dream for Indian children. और अब बात इजराइल और हमास जंग की। युद्ध के 10वें दिन भी टकराव कम होने के कोई आसार कहीं से नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हालांकि कहा है एक इंटरव्यू में कि गाजा पर कब्जा करना बड़ी गलती होगी। इस पर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि उनका इरादा गाजा पर कब्जा करना नहीं है, लेकिन वो हमास का नाम निशान मिटाने के पहले रुकने वाले नहीं है। अब इजराइल गाजा में ग्राउंड अटैक की पूरी तैयारी कर चुका है। इजराइल ने दावा किया है कि 6 लाख लोग गाजा छोड़कर जा चुके हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के अस्पतालों में ईंधन 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। यूएन ने इजराइल से गाजा में मदद पहुंचने देने की अपील की है और हमास से कहा है कि वो बंधकों को बिना शर्त रिहा करे। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि मानवीय मदद पहुंचाने के लिए मिस्र गाजा बॉर्डर पर राफा क्रॉसिंग खोला जाएगा, हालांकि इस पर स्पष्टता नहीं है। इधर उत्तरी इजराइल का एक छोटे से टाउन ज़ेरोट पर अब लगभग पूरी तरह खाली हो चुका है और इस शहर का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार। इजराइल के दक्षिणी शहरों में बहुत भय है, आतंक है। ज़ेरोट में दूसरी बार इस वक्त हमें आए हैं और इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि यहाँ के लोगों को शहर से दूसरे शहरों में जाने को कहा गया है क्योंकि गाजा में एक बड़ा स्ट्राइक करने वाला है इजराइल। ज़ेरोट से महज कुछ किलोमीटर भी नहीं, कुछ सीमा है जो 840 मीटर की दूरी पर है गाजा से। ज़ेरोट पर भी हमास के आतंकियों ने हमला किया था। सिर्फ हमें इतना मिली। मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट दिस सिटी। व्हाई आर यू हियर? You are not scared? I prefer to be here. You don't know, she's not scared. Yeah. You are not scared. I'm not scared. Everyone's a hero. अब ये घोस्ट सिटी ही नहीं है, घरों के अंदर भी कोई नहीं है। पहले लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन यहाँ अब आपको सिर्फ आर्मी के लोग इधर देखिए, इस तरफ हमारी तरफ देखिए, इधर आपको आर्मी के लोग दिखेंगे। घरों के अंदर कोई नहीं। ये तो मार्केट एरिया है जहाँ से हम गुजर रहे हैं।
90% से ज्यादा लोग, शायद 95% लोग भी इस शहर से जा चुके हैं दक्षिणी भाग में। दक्षिणी यानी इजराइल के दक्षिणी भाग में। कुछ लोग जेरूसलम गए हैं, एलियात गए हैं, तेल अवीव गए हैं। और ये आप पुलिस स्टेशन है, जब 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास के लड़ाकों ने, आतंकियों ने, तब यहीं हमला किया था। इस स्टोरी को हम पहले भी बता चुके। लेकिन इन घरों में कोई नहीं है। तो मानवता की अपील के चलते क्या इजराइल हमास की जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। वित्त मंत्रालय ने अगले बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे तो जो सरकार चुनाव में जा रही होती है वो महज एक अंतरिम बजट पेश करती है, लेकिन सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि इस बार का बजट सिर्फ वोट ऑन अकाउंट तक सीमित रहे। लक्ष्मण रॉय से डिटेल लेते हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि क्या संकेत मिल रहे हैं अभी तक? वैसे तो जब भी कोई सरकार चुनाव में जा रही होती है तो चुनाव से पहले का जो बजट होता है एक अंतरिम बजट होता है, यानी बचे हुए समय में जो खर्च की ज़रूरत है उसकी मंजूरी ली जाती है। लेकिन जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है या फिर वित्त मंत्रालय से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक जो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा वो महज वोट ऑन अकाउंट नहीं रहने वाला है। वो वोट ऑन अकाउंट से ज़्यादा कुछ उसमें ऐलान हो सकता है, यानी ये कहें कि अंतरिम बजट में सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। अब वो बड़े ऐलान क्या करेगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, अभी फिलहाल तय नहीं किया गया है। इसके लिए जो बड़े ऐलान हैं एक राजनीतिक फैसला होता है, इसलिए सूत्र कह रहे हैं कि जब राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो उन नतीजों के बाद सरकार ये तय करेगी कि आखिर बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान करने हैं, और करने हैं तो किस सेगमेंट को, किस तबके को राहत दिया जाना है। किसानों को राहत दिया जाना है, मध्यम वर्ग को राहत दिया जाना है, या फिर किसको राहत दिया जाना है, तब ये तय किया जाएगा। हालांकि सरकार के पास कई सारे विकल्प हैं। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि का बढ़ाया जाना, मुफ्त अनाज योजना की दायरा बढ़ाया जाना, इनकम टैक्स में रियायत देकर मध्यम वर्गों को लुभाना, इस तरह के विकल्प हैं। लेकिन किस विकल्प को किस लहजे में सरकार इस्तेमाल करेगी वो अभी देर है। राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद सरकार ये तय कर सकती है। हालांकि ऐसे हालात में सबसे बड़ी अड़चन ये होती है कि सरकारी खजाना कितना तंदुरुस्त है। तो सूत्रों का ये कहना है कि अभी सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं है। डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन हो, वो काफ़ी अपेक्षा के अनुरूप है। तो सरकारी खजाने का बोझ या फिर सरकारी खजाने की तरफ से कोई आड़े नहीं आएगा। सरकार चाहे तो बड़े ऐलान कर सकती है, कुछ बड़ा खर्च उठाने में सक्षम है। और रही बात कानून की, तो कानून भी सरकार को वोट ऑन अकाउंट या फिर अंतरिम बजट में किसी बड़े ऐलान करने की इजाज़त देने से मना नहीं करता है। यानी सरकार चाहे तो कानूनन भी बड़े ऐलान कर सकती है अंतरिम बजट में। अब पहले भी सरकार ने किया है कई सारे बड़े ऐलान। पहले की सरकारों ने भी किया है, किस तरीके के ऐलान किए हैं लक्ष्मण जी? उससे एक अंदाजा मिल जाएगा कि क्या हो सकता है इस बार भी। जी हाँ, पिछली सरकारों की बात करें तो सबसे पहले तो आप मोदी सरकार को ही देखिए। 2019 में जब अंतरिम बजट लाया गया था तो कई बड़े ऐलान किए गए थे। मिसाल के तौर पर प्रधान किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था, इनकम टैक्स में छूट बढ़ाई गई थी। इसके अलावा सरकार ने किसानों को दूसरे ऐलान किए थे। उससे पहले 2014 में यूपीए सरकार ने जब अंतरिम बजट पेश किया था तो उस वक्त भी कई बड़े ऐलान किए गए थे। मिसाल के तौर पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी, वहाँ पर सिंचाई पर सब्सिडी का ऐलान किया गया था, एजुकेशन पर सब्सिडी का ऐलान किया गया था। तो उससे पहले भी कई सारे ऐलान होते रहे अंतरिम बजट में। तो परंपरा के हिसाब से भी देखें तो कोई ये नहीं कह सकता कि पहली बार ऐसा होगा, लेकिन सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। ज़रूरत का हवाला देते हुए सरकार इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अंतरिम बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। और इस वजह से ये संभावना काफ़ी प्रबल है कि इस बार के भी अंतरिम बजट में, जिसके तुरंत बाद सरकार चुनाव में जाएगी, तो कई बड़े ऐलान कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते का पहले दिन सुबह बाजार में गिरावट रही, मगर क्लोजिंग के समय आते आते बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 66,167 पर बंद हुआ। निफ्टी 19 अंक गिरकर 19,732 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, पीएससी, ऑटो शेयरों में रही। फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, आईटी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। और एचडीएफसी बैंक के Q2 के नतीजे जारी हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। इस क्वार्टर का मुनाफा
15,976 करोड़ रहा। ग्रॉस एनपीए 1.34% और नेट एनपीए 0.35% के करीब रहा। प्रोविजनिंग भी करीब 2900 करोड़ के करीब रही। आपको बता दें कि इस तिमाही के नतीजे मर्जर के कारण सालाना और तिमाही आधार पर तुलनात्मक नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। सरकार ने सितंबर में WPI यानी थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं। सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर -0.52% से बढ़कर -0.26% हो गई थी। ये अप्रैल में लगातार छठा महीना है जब थोक महंगाई दर नेगेटिव रही है। रोजाना जरूरत के सामानों की महंगाई जो है 6.34% से घटकर 3.70% हो गई है। वहीं फ्यूल एंड पावर की थोक महंगाई दर की बात करें तो वो -6.03% से बढ़कर -3.35% रही है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर -2.37% से बढ़कर -1.34% हो गई है। सब्जियों की थोक महंगाई 48.39% से घटी है और घटकर -15% रही है। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म नहीं होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट सामान्य है, इसलिए अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल महिला ने अपनी मानसिक और आर्थिक स्थिति का हवाला देकर गर्भपात के लिए याचिका दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अजन्मे बच्चे के अधिकार को तरजीह दी और कहा कि हम दिल की धड़कन रोक नहीं सकते। बच्चे के धरती पर जन्म लेने का रास्ता साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य जन्म के बाद बच्चे की देखभाल कर सकता है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर की 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन केसेस में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है। वहीं ये फैसला कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दिया है। दरअसल 2005-06 में निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे, जिनमें से 4 मामलों में वो पहले ही बरी हो चुका था। 2 मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। और यहां एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब खबरें त्योहारों से जुड़ी हुई। त्योहार आते ही ऑटो कंपनियों ने ऑफर्स की बरसात की है। टीवी 18 के परीक्षित लूथरा से एक्सक्लूसिव बात करते हुए हीरो मोटो के सीईओ निरंजन गुप्ता ने कहा कि कंपनी ने त्योहारों के लिए कई ऑफर और डीलर्स के लिए इंसेंटिव्स लॉन्च किए हैं। कंपनी को त्योहारों में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि फेस्टिव आउटलुक क्या है, क्या इस बार फेस्टिव स्कीम्स हैं, नई मोटरसाइकिल्स लॉन्च हो रही हैं? फेस्टिव का आउटलुक काफ़ी अच्छा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रो करेगी और हमारे पोर्टफोलियो में आप देखें तो इस बार 6 से 7 मॉडल्स ऐसे हैं जो पिछले फेस्टिव में नहीं थे। ऑलरेडी हमारा ब्रांड लाइनअप बहुत स्ट्रांग रहता है और इस बार और स्ट्रांग है। जैसे अगर आप देखें कि सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक है या ग्लैमर है या पैशन प्लस है या जूम जो हमने लॉन्च किया था या डेस्टिनी प्राइम, एक्सट्रीम 160R 4V, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और काफ़ी ऑफर्स और स्कीम्स हैं। और ऑफर स्कीम्स भी हमने ये किया है कि सिर्फ कंज्यूमर ऑफर्स नहीं हो, बल्कि इंसेंटिव जो लोकल टेक्नीशियंस को भी हो, जो लोकल जो सेल्स कर रहे हैं वहां पे डीलर स्टोर में, उनको भी इंसेंटिव मिले। तो इस बार हमने उसका भी ध्यान रखा है, बिकॉज वी वांट एवरीबडी टू फील द बेनिफिट ऑफ फेस्टिव एंड फॉर दिस टू बी एन इंक्लूसिव फेस्टिव। तो ये हमारी एक्चुअली ऑब्जेक्टिव। कुछ मॉडल्स पे डिस्काउंट भी है। सारे फेस्टिव में तो सब जगह कैशबैक ऑफर्स भी रहते हैं, सो कैशबैक ऑफर्स भी हैं। कुछ सिटीज में ज्यादा हैं, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान हो गए। कुछ में कम है, बट सब में कुछ ना कुछ है। प्लस फाइनेंसिंग पे बहुत कुछ है, जैसे लो डाउन पेमेंट है, ताकि अगर आप कम कैश लेके आए तो आप फिर भी आप अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल या स्कूटर लेके घर जा सकते हैं।
इंटरेस्ट रेट्स पे सबवेंशन है ताकि उनको कम खर्चा लगे, EMI कम हो जाए, एक्सचेंज बोनस है, प्लस हमारे जो कस्टमर्स है उनके लिए लॉयल्टी बोनस भी है। तो इस तरह से खूब ओवरऑल 360 डिग्री हमने सबका ध्यान रखते हुए उस हिसाब से डिवाइस किया है, क्योंकि हमारी मार्जिन प्रोफाइल भी आपने लास्ट क्वार्टर में देखा होगा कि अच्छी स्ट्रांग थी। तो ये भी एक तरह से एक हेडरूम प्रोवाइड करती है कि आप थोड़ा सा पुट मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ वेयर इट मेक्स डिफरेंस। इस फेस्टिवल सीजन अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो फ्री पार्किंग, आईफोन और इंटरनेशनल ट्रिप जैसे ऑफर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए दीपाली नंदा की ये रिपोर्ट। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है और बात करें नवरात्रों की तो इन नवरात्रों का इंतजार घर खरीदार खास तौर पर करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर आपको घर खरीदना है तो नवरात्रि से अच्छा शुभ मुहूर्त कोई और हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि इस बार त्योहारी सीजन में घर खरीदार जब घर खरीदने आएंगे उनका स्वागत ढोल, नगाड़ों, डांडिया के साथ किया जाएगा। क्या कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट इस बार डेवलपर्स की तरफ से घर खरीदारों को दिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। कहीं नवरात्रि डांडिया रास तो कहीं कठपुतली का नाच, ये सब किया जा रहा है घर खरीदारों के स्वागत के लिए। इस नवरात्रि अगर आप नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु या गोवा जैसे शहरों में सपनों का आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं तो त्योहारी फेस्टिव ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। गुरुग्राम बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर सिग्नेचर ग्लोबल आपको इस बार इंडिपेंडेंट फ्लोर या प्लॉट खरीदने पर 4 लाख रुपए की पार्किंग फ्री दे रहा है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको नवरात्रि में ही बुकिंग करवाना जरूरी होगा। साथ ही कंपनी की तरफ से हर बुकिंग पर सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा। जो हम लोगों को घर दे रहे हैं वो मिड इनकम हाउसिंग के सेगमेंट के घर हैं और वो ऑलरेडी अच्छी हम रीजनेबल प्राइसिंग भी दे रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि नवरात्रों का एक अच्छा खुशी का टाइम हमें भी लगता है सिग्नेचर ग्लोबल उनकी खुशी के अंदर शुमार होके उनको कुछ एडिशनल हम चीजें दें। गोवा जैसी खूबसूरत लोकेशन में 2 बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे एक्सिस ई-कॉप ने भी इस नवरात्रि खास ऑफर्स निकाले हैं। इन ऑफर्स में फ्री इंटरनेशनल ट्रिप, आईफोन 15 और 65 इंच का स्मार्ट टीवी शामिल है। हर बुकिंग पर एश्योर्ड गिफ्ट का ऑफर भी कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है। गोवा में रेंटल अपॉर्चुनिटीज काफी हाई हैं। पीपल आर गेटिंग 7 to 8% रेंटल अपॉर्चुनिटीज इन गोवा। तो जो है ये विला काफी डिमांड में रहते हैं, इस तरीके के विलास। तो ये स्मॉल बुटीक विलास हैं जिसमें अच्छी अट्रैक्शन है और इस फेस्टिव सीजन में मैं कोई 30-35% की ग्रोथ देख रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में भी मिड सेगमेंट और हाई एंड प्रॉपर्टी की डिमांड में अच्छा उछाल दिखाई दे रहा है। जानकारों के मुताबिक फेस्टिव सेल बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह है स्टेबल ब्याज दरें। इस साल रेजिडेंशियल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। सेल्स हैव बीन स्लाइटली हायर देन 4 to 5% हायर देन लास्ट ईयर। तो सेंटिमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। बस एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इंटरेस्ट रेट मॉर्गेजेस इतने बड़े नहीं हैं। हालांकि इस बार नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की संख्या कम दिखाई दे रही है। डेवलपर्स की कोशिश मौजूदा प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री को क्लियर करने की है और शुरुआती संकेतों से रेजिडेंशियल मार्केट में बढ़िया बिक्री लौटने की उम्मीद है। दीपाली नंदा, गुरुग्राम। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।